Hello dear students, today latest and most important questions for partial differentiation. See question number 11th. If f of xy equals phi of uv and u equal to x square minus y square, v equals 2xy, prove that del 2f upon del x2 plus del 2f upon del y2 equals 4 times x square plus y square multiplied by del 2f upon del u2 plus del 2f upon del v2. So see the question once again. A function which is defined f of xy is equal to phi of uv, means a function fxy is equal to phi of uv. In terms of u and v, it is defined in another function, and the value of u equal to x square minus y square. U is related to xy with x square minus y square, and v is related to xy with 2 times of x into y. Then we have to prove that del 2f upon del x2 plus del 2f upon del y2 equals 4 times x square plus y square multiplied by del 2f upon del u2 plus del 2f upon del v2. This is the question which is most important question and latest question, and it can be asked again. Now see its proof. Since f of xy equal to phi of uv, it is given function, or you can say given equation in terms of functions. And your formula for del f upon del x. So del f upon del x can be expressed in terms of u and v as del f upon del u into del u by del x plus del f upon del v into del v upon del x. You know very well del f upon del x can be expressed in terms of u and v as del f upon del u into del u by del x plus del f upon del v into del v upon del x, or you can say it is a formula. Here value of u, what is value of u? X square minus y square. So we write here u equal to x square minus y square, and differentiating u with respect to x partially as well as with respect to y partially separately. So first we differentiate u with respect to x partially, so we get del u by del x, del u upon del x equals 2x, because y square is constant with respect to x, so its derivative will be 0. So we see that del u upon del x equal to 2x. Now differentiating partially again this equation with respect to y. So we get del u upon del y equals minus 2y, because x square is constant. Here minus sign as it is, and derivative of y square is 2y. So we get the values of del u upon del x and del u upon del y. 2x, it is del u upon del x, and minus 2y, it is del u upon del y. Now we write the value of v equal to 2xy here. So we write here, since v equal to 2xy, now differentiating partially with respect to x, we get del v upon del x equal to 2 into y. 2y is constant, derivative of x is 1, so 2y into 1 becomes 2y only. And differentiating partially with respect to y, we get del v upon del y equals here 2 into x, and derivative of y is 1, so 2x into 1, that is 2x. So we get the value of del v upon del x 2y and value of del v upon del y equal to 2x. Now we get 4 values: del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x, and del v upon del y. Now using the formula again, this formula, so del f upon del x becomes, we write the step, this step again, since here del f upon del x expressed as here, so del f upon del x can be written as, so del f upon del u as it is, value of del u upon del x is 2x from here, and plus del f upon del v as it is from this term, into del v by del x, value of del v by del x is 2y from here.
तो इस तरह से हम लोग डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू 2x प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी इंटू 2y. After that, taking 2 common, therefore del f upon del x equals 2 multiplied by x into del f upon del u plus y into del f upon del v. तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अचीव कर लिया और उसके रिजल्ट में यहां पर मिल गए कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स x इंटू del f upon del u plus y into del f upon del v. This is the value of del f upon del x. Now differentiating partially with respect to x, this equation, this one, we get del 2f upon del x2, or you can say del square f upon del x square equals 2 as it is x into del by del x of del f upon del u plus del f upon del u plus here it is y, so y into del by del x of del f upon del v plus 0. See once again these two terms. Here derivative of means del by del x of del f upon del x becomes del 2f upon del x2 equals 2 as it is. Using u into v here, so u as it is means x multiplied by del x of del f upon del u plus v, that is del f upon del u into del by del x of x is 1. So del f upon del u into 1 becomes del f upon del u only. This means we should apply here the product of derivative rule, means here u into v rule for x into del f upon del u with respect to x plus here y into del f upon del v. So using same formula again here u into v. So y as it is del by del x of del f upon del v plus here it is del f by del v into derivative of y. It is exactly constant, del by del x of y, it is constant, so this will be 0 and 0 multiplied by del f by del v equals 0. तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा. यहाँ पर del f अपॉन del u इंटू 1 आया था, इसके लिए सिर्फ del f अपॉन del u दिखेगा. तो एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यूजिंग u इंटू वी फार्मूला फॉर बोथ द टर्म्स u इंटू वी एंड एक्सपैंड इट प्रॉपरली, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन स्टेप है. अगर ये स्टेप में कुछ भी मिस्टेक होता है तो आगे का स्टेप नहीं समझ में आएगा, वो क्लियर कर देता हूं. अब यहां से हम लोग चलते हैं आगे. Therefore del 2f upon del x2 equals here 2 as it is x multiplied by here it is del by del x of del f upon del u. See once again del by del x of del f upon del u, and it can be expressed as del 2f upon del u2 into del u by del x plus del 2f upon del u into del v upon del x plus this del f upon del u here as it is. See once again here x into del by del x of del f upon del u, value x del 2 upon del f upon del u2 into del u by del x plus del 2f upon del u into del v upon del x plus this del f upon del u as it is here plus y multiplied by del x of del f by del v. तो सेम एक्सप्रेशन यहां पर भी हो जाएगा del 2f upon del u into del v into del u by del x plus del 2f upon del v2 into del v upon del x. ये रहे इनके रिजल्ट्स. जैसा हमने यहाँ पर ब्रैकेट में एक्सपैंड किया सेम वैसा ही यहाँ पर एक्सपैंड कर सकते हो. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द अबव रिजल्ट्स वी गेट del 2f upon del x2 equals 2 multiplied by x into del 2f upon del u2 and value of del u upon del x becomes 2x. From the above results से देख सकते हो यहाँ पर कि del 2 del u upon del x, जो del u upon del x की वैल्यू है वो यहाँ पर है
इट इज इक्वल टू 2x। अभी हमें सभी वैल्यूज यूज करनी है, 2x, 2y, -2y एंड 2x। तो ये वैल्यू डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई, ये सभी वैल्यूज हमको यहाँ पर यूज करनी है इस इक्वेशन में। तो प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल यू डेल वी, वैल्यू ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स इज 2y, प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू एज इट इज, प्लस y मल्टीप्लाइड बाई डेल टू एफ अपॉन डेल यू डेल वी इंटू, अब यहाँ पर जो रिजल्ट है डेल यू अपॉन डेल एक्स है, तो इसकी वैल्यू है 2x, प्लस हियर डेल टू एफ अपॉन डेल वी टू and value of del v upon del x is 2y. Now open the brackets. Therefore del 2f upon del x2 equals, here it is 2x into 2x, that is देखो 2 multiplied by for all the terms, देखो 2 का मल्टीप्लाई सभी टर्म में है और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट में यहाँ तक ही है। क्लियर? तो देखो 2 इंटू एक्स और यहाँ भी 2x है, तो दिस विल बी 4x स्क्वायर इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल यू टू, प्लस here 2 into x और यहाँ पर है 2y, तो दिस बिकम्स 4xy del 2f upon del u into del v, plus only 2 multiplied by del f upon del u, so 2 times del f upon del u, plus now open this bracket। अब यहाँ पर देखो ये 2 का मल्टीप्लाई तो है ही यहाँ पर, तो 2y और यहाँ पर आ जाएगा 2x, तो 2y इंटू 2x बिकम्स हो जाता है अपना ये 4xy, जो कि यहाँ पर है 4xy डेल टू एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल वी, प्लस अभी ये 2 मल्टीप्लाई फिर से होने वाला है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा जो टर्म है, और y का भी मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू वाई और यहाँ पर भी 2y है, तो दिस बिकम्स 4y स्क्वायर इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल वी टू, ये टर्म आ गया। ठीक है, अब ये सारे टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है, ऑल द टर्म्स। So del 2f upon del x2 equals 4x2 into del 2f upon del u2 plus 4xy del 2f upon del u del v, और यहाँ भी है 4xy del 2f upon del u del v. Adding these two, we get 8xy del 2f upon del u into del v. Plus here it is 4y square, so 4y square into del 2f upon del v2. ये टर्म आ गया, प्लस 2 times del f upon del u, and let it be equation number first. तो इस तरह से हमें वैल्यू जो मिलती है डेल टू अपॉन डेल एक्स टू की, ये है 4x स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल यू टू प्लस 8xy डेल टू एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल वी प्लस 4y स्क्वायर इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल वी टू प्लस 2 डेल एफ अपॉन डेल यू, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये फॉर्मूला है, इसको हमें बाहर रखना पड़ेगा, रिमेंबर रखना पड़ेगा। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स डेल एफ बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। ये रहा हमारा फॉर्मूला यहाँ पर। ये फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इट इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू -2y plus del f upon del v into 2x. This is the value of del u upon del y minus 2y and value of del v upon del y 2x. So taking 2 common from these two terms, we get here 2. First we write positive term x into del f upon del v and then minus y into del f upon del u. So 2 multiplied by x into del f upon del v minus y into del f upon del u. This is the value of del f upon del y. Now differentiating partially with respect to y again, we get del 2f upon del y2 equals this 2 as it is. और इसको भी हम लोग यहाँ पर u इंटू वी से ही एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था, सेम वैसा ही यहाँ पर भी एक्सप्रेस करेंगे, एक्सपैंड करेंगे इसको u इंटू वी फार्मूला। तो x इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वी प्लस ये जीरो क्यों होता है कि डेल एफ अपॉन डेल वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स, तो हो जाएगा जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो माइनस वाई एज इट इज डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू, दिस वन देखो डेल एफ अपॉन डेल यू एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ में डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई, दिस बिकम्स 1। इस तरह से यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर x था कांस्टेंट।
So it is equal to 2 multiplied by x into del 2f upon del u del v into del u upon del y प्लस del 2f1 del v2 into del v upon del y। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने डबल ब्रैकेट्स यूज किया है, यू शुड फॉलो आल्सो सेम ब्रैकेट्स, माइनस y this y as it is, so del 2f1 del u2 into del u by del f, sorry del u by del y प्लस del 2f upon del u into del v into del v upon del y। ये हमारा इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो यहाँ पर आ गया, प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू एज इट इज। तो डेल एफ अपॉन डेल यू में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फिर से देख लो, डेल बाय देखो एक्स तो अपनी प्लेस पर है, तो एक्स से मल्टीप्लाइड ऑल होल टर्म होता है। यहाँ पर एक्स को हमने ले लिया है बाहर, ठीक है, एक्स को यहाँ पर हमने बाहर कर दिया। डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वी, एक्चुअली जो एफ है वो वैल्यू क्या है, एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसा इक्वल टू फाई ऑफ यूवी दिया गया। तो इसको जो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे उसको यूवी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है, इसके लिए इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। और हम लोग यूवी के साथ यहाँ पर एक्स वाई के जो भी टर्म आते हैं उनको भी अटैच करेंगे। तो डेल टू एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल वी इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। देखो अगर हम लोग डेल यू को कट करते हैं यहाँ पर, और ये डेल बाई डेल, यहाँ पर हमारा डेल ऑफ डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, तो हमें बचेगा डेल एफ अपॉन डेल वी, यही टर्म हमारा रिमेनिंग रह जाता है यहाँ पर, प्लस। और अगर हम लोग यहाँ वन टाइम डेल वी कट करते हैं तो ये बचेगा डेल बाई डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वी। तो ये टर्म हमारे रिमेनिंग रह जाते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि हम लोगों ने इसको जो फंक्शन को यहाँ पर एक तरह से जो एक्स वाई के टर्म में या यूवी का जो यहाँ पर उसका फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। और इसके अभी मैं जो बाद में और भी क्वेश्चंस लोड करूंगा, अपलोड करूंगा यहाँ पर, तो उसमें भी देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू फाई ऑफ यू वी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको यूवी के फॉर्म में एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक। तो अब आइए यहाँ पर हम लोगों ने ये डेल टू, सॉरी हम लोग यहाँ पर थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एक्सप्रेस कर दिया और उसके बाद इसका एक्सपेंशन बता दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट टर्म माइनस वाई, तो वाई को भी हम लोग यहाँ पर बाहर रखते हैं केवल इतनी टर्म के लिए जब तक इसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हो जाता। तो वाई मल्टीप्लाइड बाय डेल टू एफ अपॉन डेल यू टू इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई क्लोज्ड। तो यहाँ पर y मल्टीप्लाइड बाय ऑल दीज टर्म्स ओनली प्लस डेल एफ वन डेल यू एज इट इज यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डेल बाय डेल वाई नहीं, इसमें सिर्फ ये अकेला टर्म है। यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ वन डेल यू उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा यहाँ पर, और उसी तरह से डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल एफ वन डेल वी वो एक्सपेंड करना पड़ा यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, ओपन द ब्रैकेट्स, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड देन ओपन द ब्रैकेट्स। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ डेल वी अपॉन डेल वाई, यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये सभी वैल्यूज हम लोग एक्स वाई के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय देखो एक्स एज इट इज, वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस टू वाई, तो डेल टू एफ वन डेल यू इंटू डेल वी दिस वन एज इट इज, प्लस वैल्यू ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई इज 2x and del 2 f1 del v2 as it is, minus y this y as it is, and value of del u upon del y minus 2y into del 2 f1 del u2 plus value of del v upon del y 2x into del 2 f1 del u into del v plus del f1 del u here as it is. Now open the brackets. So therefore del 2 f1 del y2 equals here 2x into 2x del 2 f1 del v2. First we write here पॉजिटिव टर्म, तो पॉजिटिव टर्म हमारे पास देखो एक यहाँ पर भी है, तो हम सबसे पहले u से स्टार्ट करते हैं और ये टर्म को सबसे पहले लिखते हैं। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस y इंटू टू वाई, और एक 2 ये ऐसा यहाँ पर है जो सभी में पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करता है। तो 2 इंटू वाई इंटू टू वाई बिकम्स 4y स्क्वायर इंटू डेल टू एफ, ये लिखा गया डेल टू एफ वन डेल यू टू, ये पहला टर्म हमने यहाँ पर बनाया है। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस वाई इंटू टू वाई स्क्वायर, और एक 2 इसका भी मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2 बिकम्स 4y स्क्वायर इंटू डेल टू एफ वन डेल यू टू माइनस, अब इसके बाद जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होने जा रहा है वो मल्टीप्लाई है 2
इनटू ये टर्म के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उनको ऐड भी करेंगे। तो ये हमारा जो टर्म है, सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करेंगे कि 2x इंटू माइनस टू वाई, सॉरी फर्स्ट टर्म 2x इंटू माइनस टू वाई, ये हो गया माइनस 4xy डेल टू एफ वन डेल यू डेल वी। और एक हमारे पास जो टर्म है यहाँ पर भी, ये देखो y का मल्टीप्लाई है और माइनस साइन भी है, तो माइनस वाई इंटू टू एक्स दैट इज माइनस टू एक्स वाई डेल टू एफ वन डेल यू डेल वी। तो ये और ये 2 का मल्टीप्लाई है बोथ में। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म आता है ए माइनस टू एक्स वाई डेल टू एफ वन डेल यू डेल वी एंड माइनस टू एक्स वाई डेल टू एफ वन डेल यू डेल वी बिकॉज माइनस फोर एक्स वाई डेल टू एफ वन डेल यू इंटू डेल वी। और ये 2 से मल्टीप्लाई भी है तो इसलिए हो गया माइनस एट एक्स वाई डेल टू एफ वन डेल यू इंटू डेल वी। फिर से देख लो, x इंटू दीज टू टर्म, मतलब ये दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करना है और ये y इंटू माइनस के साथ माइनस वाई इंटू ये मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाता है माइनस फोर एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल वी, बट टू इज मल्टीप्लाइड फॉर ऑल द टर्म्स, तो इसका डबल करेंगे, यहाँ पर हो गया एट एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल वी। प्लस अब जो हमारा अगला टर्म है यहाँ पर वो आने वाला है यहाँ प्लस फोर एक्स स्क्वायर। अब देखो टू एक्स इंटू टू एक्स, तो ये टर्म है फोर एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वी टू, यहाँ से डेल टू एफ अपॉन डेल वी टू एज इट इज हियर। और एक टर्म जो अभी लास्ट हमारा जो रिमेनिंग है ये हमारे पास आता है जस्ट यहाँ पर माइनस, अब ये देखो यहाँ पर है टू और यहाँ पर जो हमारे पास है नेगेटिव साइन है, ये माइनस साइन, ये करली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ है तो हम लोग इसको माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, और ये टू का मल्टीप्लाई यहाँ पर है तो माइनस टू इंटू डेल एफ अपॉन डेल यू, ये टर्म के लिए, इसके लिए क्लियर देख सकते हो यहाँ पर, ये टर्म के लिए माइनस टू इंटू डेल एफ अपॉन डेल यू एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया यहाँ पर। अब इस तरह से हम लोग इसको, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास टू इक्वेशंस हैं और वो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए आगे चलते हैं अभी। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट del 2 f1 del x2 plus del 2 f1 del y2, this is left hand side of both the equations, it means equation first and second का left hand side add हो गया, equal to, अब यहाँ पर हमारे पास जो राइट हैंड साइड यहाँ मिलने वाला है वो क्या आने वाला है उसको देखते हैं। देखो फोर, हम लोग एक बार वापस चलेंगे इक्वेशन वन की तरफ। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारे पास आया हुआ रिजल्ट है उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखो फोर एक्स स्क्वायर और डेल टू एफ वन डेल यू टू, और जो प्लस एट एक्स वाई डेल टू एफ वन डेल यू इंटू डेल वी, और अगले सेकंड इक्वेशन में है माइनस एट एक्स वाई डेल टू एफ वन डेल टू एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल वी, तो दे विल बी कैंसल टू ईच अदर। और प्लस टू डेल एफ वन डेल यू यहाँ पर है और सेकंड इक्वेशन में है माइनस टू इंटू डेल एफ वन डेल यू, वो भी कट हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म दे विल बी कैंसल्ड, रिमेनिंग होंगे केवल फोर एक्स स्क्वायर डेल टू वन डेल यू टू और यहाँ फोर वाई स्क्वायर डेल टू वन डेल वी टू। तो ये ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें आगे यहाँ ऐड कर देना है। तो हमने ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, तो यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर डेल टू एफ वन डेल यू टू और फोर वाई स्क्वायर डेल टू एफ वन डेल यू टू, ये हमारे सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से फोर एक्स स्क्वायर डेल टू एफ वन डेल यू टू और सेकंड इक्वेशन से फोर वाई स्क्वायर डेल टू एफ वन डेल यू टू, इन दोनों में फोर कॉमन किया और डेल टू एफ वन डेल यू टू भी कॉमन है, तो फोर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू एफ वन डेल यू टू प्लस, अब फर्स्ट इक्वेशन में है फोर एक्स स्क्वायर डेल टू एफ वन डेल वी टू और सेकंड इक्वेशन में जो रिमेनिंग टर्म है वो है हमारे पास फोर वाई स्क्वायर डेल टू एफ वन डेल वी टू फर्स्ट में है और यहाँ पर है फोर एक्स स्क्वायर डेल टू एफ वन डेल वी टू, तो फोर कॉमन एंड डेल टू एफ वन डेल वी टू कॉमन, वी गेट फोर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ वन डेल वी टू। तो इस तरह से हमारे पास देखो यहाँ माइनस एट एक्स वाई और ये माइनस टू डेल एफ वन डेल यू, ये दोनों ही टर्म कैंसिल हो चुके हैं, तो ये फर्स्ट और थर्ड रिमेनिंग है। इसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट में भी फर्स्ट और थर्ड रिमेनिंग है, जिनको हम लोग ऐड करेंगे और कॉमन करेंगे तो हमें ये स्टेप मिल जाएगा, आराम से लिख सकते हो।
तो एक बार वापस ये स्टेप को मैं रिपीट करता हूं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट del 2 f upon del x2 plus del 2 f upon del y2 equal to 4 times x square plus y square into del 2 f upon del u2 plus 4 times x square plus y square into del 2 f upon del v2. Therefore, del 2 f upon del x2 plus del 2 f upon del y2 equals, here x square plus y square is also common, तो 4 into x square plus y square, देखो 4 भी कॉमन है, x square plus y square भी कॉमन है बोथ में, तो इनको हमने कॉमन कर लिया और यहाँ पर आ गया del 2 f अपॉन del u2 दिस एंड del 2 f अपॉन del v2 दिस, ये टर्म कॉमन हो गया। इस तरह से हमारा जो रिजल्ट यहाँ पर लाना था, जो हमें प्रूफ करना था, वो रिजल्ट हमें मिल गया। देयरफॉर del 2 f upon del x2 plus del 2 f upon del y2 equal to 4 into x square plus y square into del 2 f upon del u2 plus del 2 f upon del v2। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो। और आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। इन केस you have any doubt in this question or in another questions, so you can ask your doubt in the comment section। और इस क्वेश्चन को अगर हमें कभी इसको हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इन केस अगर यू स्क्वायर और वी स्क्वायर में भी कन्वर्ट करना हो तो यू कैन कन्वर्ट इजिली। जैसा कि ये कन्वर्जन है, तो इस कन्वर्जन को मैं क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर कंप्लीट करूंगा और वहां पर बताऊंगा कि इसकी वैल्यू यू स्क्वायर और वी स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी इनकेस अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया तो यू कैन कन्वर्ट इजिली द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। जो हमारे इक्वेशन में, जो क्वेश्चन में हमारा इक्वेशन है, उसका जो रिलेशन है, उस रिलेशन से इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और यू कैन से अलजेब्रिक फॉर्मूलाज। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। If u equal to x square plus y square, this is the given value of u, and v equal to 2xy, a function z equal to f of uv, prove that x into del z upon del x minus y into del z upon del y equals 2 into root of u square minus v square into del z upon del u। ये हमें रिजल्ट कंप्लीटली यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ u, v एंड z। तो एक बार वापस यहाँ पर रिपीट करता हूं मैं, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ v 2xy, z इक्वल टू f ऑफ uv, देन प्रूव दैट दिस रिजल्ट। तो आइए सबसे पहले हम छोटे छोटे टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं और उनको नोट करके रखते हैं कि इनके वैल्यूज क्या है यहाँ पर। फॉर द प्रूफ सिंस u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज गिवन, तो जो भी हमें u और v के वैल्यूज दिए हों और फंक्शन को u में ही डिफाइन किया गया हो, तो सबसे पहले उनके हमें डेरिवेटिव मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेना चाहिए। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग इसे बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग डेल यूज करते हैं और डेल्टा, ये स्मॉल डेल्टा है यहाँ पर, तो इसको रीड एज डेल। So u equal to x square plus y square, differentiating partially with respect to x, we get del u और डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, जो ये स्मॉल डेल्टा है, इसको चाहे तो डेल्टा रीड करो या डेल, रीड एज डेल। डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट x इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट x इज 0। Now differentiating partially with respect to y, we get del u upon del y equal to 2y। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि जब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर y स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, ये 0 हो जाएगा और सिर्फ 2x मिलेगा यहाँ पर। और जब विथ रिस्पेक्ट टू y इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव हमें 0 अज्यूम करना है, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y। तो इस तरह से मैं del u की वैल्यू 2x, del u बाय del x की वैल्यू 2x एंड del u अपॉन del y की वैल्यू 2y मिल गई। अब नोट करते हैं वैल्यू ऑफ v। तो वैल्यू ऑफ v क्या है? वैल्यू ऑफ v इज 2xy। अब इसको भी हमें सेम ट्रीट करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हियर 2 into i कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो del v अपॉन del x becomes 2i into 1, that is 2i only। एंड डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर 2x कांस्टेंट होगा और डेरिवेटिव ऑफ y 1 हो जाएगा, 2x into 1,
दैट इज 2x, तो डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2x। तो ये हमारे पास 4 रिजल्ट्स रेडी हो गए, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस तरह के रिजल्ट्स रेडी कर लिए थे बिफोर प्रूविंग द क्वेश्चन, क्योंकि उनकी हमें जरूरत है और बीच बीच में उनके सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। एक चीज और, यहाँ पर स्टूडेंट को कभी कभी डाउट होता है कि जैसा कि हम लोग प्रीवियसली करते थे इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या अदर टर्म्स जो भी आते थे, वहां पर हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करते थे। इसके लिए हम लोग y और x को कांस्टेंट अज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ पर है डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x और हमारा फंक्शन जो इक्वेशन दिया है वो u इक्वल टू समथिंग है, तो इसके लिए हमें जो अनदर वेरिएबल होंगे अदर देन u एंड x दैट विल बी कांस्टेंट। उसी तरह से जब हम लोग इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली करते हैं, तो यहाँ पर u और y को छोड़कर जो अदर वेरिएबल्स जो भी आएगा, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर आता है, ये कांस्टेंट रेट होगा, तो इसको हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे और अदर्स और अगर कोई भी दूसरा भी लेट यहाँ पर वेरिएबल होगा तो उसको भी कांस्टेंट अज्यूम करेंगे एक्सेप्ट u एंड y। तो ये रीजन होता है कि यहाँ पर हम लोग इसको कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, और प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में जब भी थे तो वहां पर हम लोग कांस्टेंट अज्यूम नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर हमारा रिजल्ट था y एंड x के फॉर्म में। अब आइए इनके जो फंक्शन की वैल्यू है उसको भी नोट कर लेते हैं। सिंस z इज डिफाइंड एज, तो z इक्वल टू एफ ऑफ यू वी, यहाँ पर z क्या है, एफ ऑफ यू वी। तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि जब भी हम लोग डेल z अपॉन डेल एक्स मीन्स डेल्टा z अपॉन डेल एक्स या डेल्टा z अपॉन डेल्टा वाई फाइंड करने वाले हैं, तो वहां पर हमें सभी रिजल्ट्स यूवी के फॉर्म में लिखना होगा। ये इसका है मीनिंग। अगर मान लो z इक्वल टू यहाँ पर है एफ ऑफ, सपोज कर लो यहाँ पर हमें mn दे दिया है, तो हमें जो रिजल्ट्स यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला बनाया हुआ है, जो फॉर्मूला एक्सपैंड किया है, उसको m एंड n के फॉर्म में लिखना है। अगर यहाँ pq दे दिया तो उसको हमें pq के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर अगर xy दे दिया है तो हमें यहाँ पर xy के फॉर्म में लिखना होगा। फिर हमें जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है उसे किसी दूसरे फॉर्म में कंसिडर करना होगा। फिर वो वैल्यूज यहाँ पर हो जाएंगी चेंज। तो चलिए, तो z इक्वल टू एफ ऑफ यू वी, इट इज गिवन फंक्शन। Now differentiating partially with respect to x means delta z upon delta x or del z upon del x can be expressed as del z upon del u into del u by del x। देखो del z upon del x ही है, तो del z upon del u into del u by del x प्लस del z upon del v into del v upon del x, ये इसकी है डेफिनेशन, और यू कैन से इट इज फार्मूला। तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, एक्सपैंड कर लिया। अब इसके बाद इसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमने ये फार्मूला लिखा, तो इस फार्मूले पर हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये टू वैल्यू जैसे हैं जो हमारे अबव रिजल्ट्स में अवेलेबल हैं। तो डेल यू बाय डेल एक्स है 2x और डेल वी अपॉन डेल एक्स है 2y, तो इनके वैल्यूज तो हम लोग एटलीस्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आइए अगले स्टेप में वही कर देते हैं। तो देयरफॉर डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल यू एज इट इज इनटू डेल यू बाय डेल एक्स है, तो यहाँ पर हो गया 2x, इट इज वैल्यू ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, हियर वैल्यू ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स इज 2y, तो इसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया 2y। दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ पर रिजल्ट प्रूव करना है, यहाँ पर x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, तो x इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल एक्स या डेल जेड अपॉन डेल एक्स इन शॉर्ट फॉर्म ऐसा रीड कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स, ये पूरे इक्वेशन को हम लोग पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स नहीं लिखा है, ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ दिस इंप्लाइज दैट x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू here 2x into x that is 2x square into del z by del u plus here 2y into x that is 2xy into del z upon del v। तो x into del z upon del x becomes 2x square into del z upon del u plus 2xy into del z upon del v and let it be equation number first। Now del z upon del y equals, अब इसका जो रिजल्ट है यहाँ पर उसको भी हम लोग लिखेंगे कि इसी के इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y बोल सकते हैं, या तो कि सिंस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि डेल यू अपॉन डेल वाई, जो डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू है वो है 2y
और जो यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू है वो भी है, सॉरी डेल वी अपॉन डेल वाई का वैल्यू 2x और डेल वी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू है 2y। ये सभी वैल्यूज हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो भी हमें यूजफुल वैल्यूज हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू 2y प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू वैल्यू ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल वी अपॉन डेल वाई क्या है 2x, यहाँ पर हमने इंटू 2x कर दिया। और अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर y इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स, हियर इट इज 2y इंटू वाई दैट इज 2y स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस 2xy, यहाँ पर हमने y से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 2xy इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं वो देखना है। देखो x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है, और y इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, मीन्स हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो ये डेल जेड अपॉन ये वैल्यू जो यहाँ पर मल्टीप्लाई x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस y इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए, इक्वल टू 2x स्क्वायर जो रिजल्ट है देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 में है 2x स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल यू एज इट इज प्लस 2xy डेल जेड अपॉन डेल वी हियर माइनस 2y स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल यू वी राइट हियर एंड प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस 2xy डेल जेड अपॉन डेल वी। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें एक इक्वेशन यहाँ पर मिल गया। तो इसमें हम लोग देख लें कि जो मिडल टर्म्स हैं प्लस 2xy डेल जेड अपॉन डेल वी, ये मिडल इस सेकंड टर्म, और यहाँ पर है फोर्थ टर्म माइनस 2xy डेल जेड अपॉन डेल वी, दे विल बी कैंसल्ड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर इसको क्रॉस आउट कर सकते हो। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं अब वहां पर हमें क्या मिलता है 2x स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस 2y स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू, ये रिमेनिंग टर्म्स है। तो इसमें देखो 2 कॉमन है उसको कॉमन करते हैं, और डेल जेड अपॉन डेल यू भी कॉमन है तो उसको राइट हैंड साइड में लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो आता है उसको ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वी राइट हियर। तो इस तरह से हमें जो रिजल्ट है यहाँ पर वो मिल रहा है x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू, ये रिजल्ट आया। लेकिन हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसको हमें यूवी के फॉर्म में ट्रांसफर करना है। जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 11 में भी बताया, वहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में था, और यहाँ पर जो रिजल्ट है ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। तो आइए अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हमें यूवी के फॉर्म में ट्रांसफर करना है। सिंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये हमने यूज कर दिया एक फार्मूला यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे अभी, तो ये रिजल्ट जो हमारा है देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ यू, इसको यू की वैल्यू है तो दिस बिकम्स यू स्क्वायर, और ये बन रहा है 2xy द होल स्क्वायर। देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे 2xy द होल स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ v, तो यहां बन गया v स्क्वायर। दिस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब यहां पर देखना है और यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। देयरफॉर x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू, 2 इंटू
रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू। ये तो हमारा जो रिजल्ट है यहां पर एक कंप्लीटली प्रूफ हो गया। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग वहां पर बोल सकते हैं कि जो यहां अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, कौन से फॉर्मूले यूज किए, जैसे डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये हमारा जो चेन रूल का फॉर्मूला है, तो ये चेन रूल को हम लोग 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ एक्स वाई तक ही क्वेश्चंस आएंगे, एक्स वाई एंड यू वी फॉर्म, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, ये 3 वेरिएबल्स भी यूज किया जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी अब तक पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो आइए उनका हम चेन रूल यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सी द चेन रूल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। डेल जेड अपॉन डेल यू इक्वल्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल यू। ये तो रहा डेल जेड अपॉन डेल यू के फॉर्म में। इसी तरह से हम लोग इसको एक्स वाई के फॉर्म में, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यू वी का यू और वी यूज करेंगे। तो ठीक है, अभी एक ही फॉर्मूला हमें बाहर रखना है। इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को कहीं पर भी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं एज पर एज गिवन क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, वहां पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। And del z upon del v can be expressed as del z upon del x into del x by del v plus del z upon del v into del y by del v। तो इस तरह से ये हमें चेन रूल का फॉर्मूला बताता है। ये तो हमारे हो गए 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में। सेकंड चेन रूल देखिए जो कि 3 वेरिएबल्स के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सेकंड चेन रूल है डेल जेड बाय डेल यू। मान लो हमें डेल जेड बाय डेल यू के फॉर्म में यहाँ इसको एक्सपैंड करना है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल टी इंटू डेल टी बाय डेल यू। और इसी तरह से डेल जेड बाय डेल वी के लिए अगर लिखना है तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल वी प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी प्लस डेल जेड अपॉन डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल वी। इस तरह से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, देखो इसका ट्रिक होता है डेल एक्स कैंसिल, डेल जेड बाय डेल यू मीन्स जो हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है डेल जेड, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा यू, यही हमारे पास सभी टर्म में रिमेनिंग दिखना चाहिए कट होने के बाद। जैसे इसको हमने कैंसिल किया, देखो डेल्टा जेड अपॉन डेल यू, डेल वाई कैंसिल, डेल्टा जेड अपॉन डेल यू, डेल्टा टी कैंसिल, डेल्टा जेड अपॉन डेल यू। ये इसका लिखने का ट्रिक होता है, रूल होता है। तो इसको हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लर्न द ट्रिक एंड टू राइट द चेन रूल फार्मूला फॉर एनी वेरिएबल। और यहां पर भी सेम ट्रिक है, यहां भी देखो डेल एक्स तो डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल वाई कैंसिल, डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल टी कैंसिल, डेल जेड अपॉन डेल वी। तो सभी फॉर्मूले इस तरह से चेन रूल के आते हैं, तो कंटिन्यूसली इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो डेल्टा जेड अपॉन डेल यू यहाँ पर भी ये कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स में भी सेम फार्मूला है। तो ये रहा इसका बाहर रखने का ट्रिक, मीन्स हाउ टू लर्न चेन रूल, हाउ टू राइट चेन रूल बाय अ ट्रिक। तो इस तरह से ये हमारे बोथ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और चेन रूल का फार्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चंस के लिए या आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए और होल चैप्टर के लिए, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन फार्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सभी में चेन रूल फार्मूले अप्लाई करने हैं। तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसे ही सॉल्यूशंस को पाने के लिए और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।